Yes, recording is on. So let me pull my WhatsApp. Okay, this was the last message. Sir, Yes. maybe I will not take tomorrow's session. So can you quickly tell me what is that is not grammatically correct in this sentence? Are you able to see the slide? I Yes, mean, yes, sorry, yes, yes. screen. I'm able. I'm. Yeah. Right. So could you very quickly tell me what is that is not wrong? Grammatically, formally, what is that not wrong? Communicative, it is communicative. Casual message, it is fine, I understand. But if you take it professionally, if you take it, formally, what is wrong in this? Wrong actually. What is wrong? I'm. यही चीज बहुत Maybe. इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सीख रहे हैं उनको उसको हमको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है. जब तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते नहीं हम लोग हाउ टू लर्न इफेक्टिवली में क्या सीखा है, unless and until we don't put it into practical, our learning is not pepping. Yeah, so sorry for interrupting. Sir, maybe I will not take tomorrow's session. What do you think? Sir, may I be? Sir, may I be? Okay. That's what is wrong, is it? Okay. The first and the most important mistake is punctuation. It is not ended Yes. with a full stop. That's the first error. Second error, what is the subject in this sentence? The Sir. first word ideally should be the subject. All right. So, sir, Yes. maybe. Sir, maybe. Does it make a proper start of the sentence? No. So, if she's addressing to sir, then after sir, there Yes. should have been a comma. Right. Did you understand? Sir is Yes. not the Yes. subject here. So, after sir, there should have been a comma. Oh, And who is trying to communicate this to? right. Snehalata. So, she's referring Sunil. I, right? So, I is the Yes. subject, isn't it? So, where I should be mentioned? I should start. I may not be able to attend tomorrow's session would have been fine. Or, sir, I may not. Yeah, that's it. I may not. You cannot have two modal verbs in one sentence. May, will. Yeah. I may be. Okay, so I may not be take. Able to attend. Take is again a vocabulary error. लिटरल मीनिंग ऑफ टेक क्या होता है, इसको बोलते हैं मदर टंग Link. इन्फ्लुएंस. अपने मदर टंग में सोचना और इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना. कल हमने करा था ना ट्रांसलेशन एक सेंटेंस का, ये गलती इसमें भी हो जी रही जी है. जी. टेक मतलब क्या है, मैं ले नहीं पाऊंगी, मैं हम्म. कल की क्लास ले नहीं पाऊंगी. तो ले नहीं पाऊंगी को उसने कन्वर्ट करके टेक बना दिया यहाँ पे. एक्चुअली क्या होना Right. चाहिए, वी, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन IELTS because you are an IELTS Participate. aspirant. Yeah. I will not be able to participate. I will not be able to attend. Attend is the right word. Okay. So अगर Right. IELTS में ये बंदी ने take लिख दिया कि instead of attend, तो उसके vocabulary के marks कट जाते हैं, lexical resource के marks कट जाते हैं, या आपके भी कट जाएंगे, जो भी लिखता है. तो ये vocabulary error हुआ. तो क्या errors हुए, एक punctuation का 2 error आ गया इसमें, और एक sentence structure का error आया, और एक vocabulary का error आया. ठीक है, clear है? Absolutely. So if you were to write Clear. this sentence correctly, what it should be? It should be, let me write it again. It should be, sir, I may not attend. I may not attend tomorrow's class. Tomorrow's class होगा, ठीक है? Tomorrow's, मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है. Tomorrow's session, yeah, class, whatever. Full stop. It's very important. Sir, I may not attend tomorrow's session. ये सही रहता. और सर आई विल नॉट, अगर 100% श्योर है तो आई विल नॉट, ठीक है, वो सब करनी है तो आई मे नॉट. और या दैट्स इट, ये एक हो गया, ये करेक्शन हुआ. नेक्स्ट, या आई अग्री विद दिस थॉट, ये आपका है. इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या एरर है इसमें? और एरर नहीं कहेंगे इसको, कैसे बेटर प्रोफेशनल सेंटेंस बना सकते हैं क्या, या तो फिर ये सही है, ठीक है, ये आपकी है. तो आप क्लू ले लो, जो फीडबैक मैंने दिया है वही फीडबैक में लागू करता है. 2 चीज तो लगाना ही लगाना है इसमें. क्या एक तो एक
एक तो इसमें एंड में पॉइंट नहीं लगा हुआ उसमें। यस, एक फुल स्टॉप लगना चाहिए इसमें। दूसरा तो और क्या होना? आई एम एग्री। हाँ, आई एग्री ठीक है ना, आई एम अग्री नहीं बोलते ना हम लोग, आई एम अग्री बोलते हैं क्या? आई एग्री ठीक है। तो फुल स्टॉप का एक एरर हुआ इसमें। और या नहीं होता, या इज अ इनफॉर्मल वर्ड। यस, यस के बाद में क्या लगना चाहिए? कॉमा, बिकॉज यस इज कोमा नॉट द कोमा। सब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट। सो आई अग्री विथ, यही प्रॉब्लम है मेरा टाइपिंग का। आई अग्री विथ दिस थॉट। समझ में आ रहा है? Punctuations are बिल्कुल। very important when we write. So yes, I agree with this thought. अगर हम बोलते भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, yes, I यस agree with this thought. Yes के बाद एक छोटा सा pause आता है। Okay. यस। Yes, agree. इसमें गलत क्या होगा? What is wrong in इसके this? बाद कोमा। Yes के बाद comma, फिर कब खत्म आई हो गया? एग्री। हाँ, आई एग्री। कौन है उसमें सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता। यस आई अग्री। ठीक है, अगर इमोशनली, इफ यू आर वेरी इमोशनल, देन exclamation mark, but exclamation should not be used in business writing। ठीक है, कभी भी business writing में मत करना। अगर पर्सनली आप लेटर लिख रहे हो किसी को या किसी फ्रेंड को और अपना इमोशन दिखा रहे हो आप उसमें, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, अदरवाइज प्रोफेशनली जस्ट वन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। राइट, देन we'll move to do you agree with this। ये आपका क्वेश्चन है, तो this is जी जी। perfectly fine, nothing wrong। So what is your thinking about it? ये किसका है? आपका है। मेरे तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत लग रहा है आपको? क्वेश्चन। What is your thinking about it? क्वेश्चन मार्क सबसे पहला, तो क्वेश्चन मार्क, सो के बाद एक कोमा लगेगा। कॉमा लगेगा तो अच्छा रहेगा। सो मैं कहता हूँ what do you think about it सही रहेगा। What do you think about it? आपकी विचार, आपका विचार क्या है, यही ना, ये कहना चाहते हो ना आप? जी यही। हाँ। आप उसके बारे में क्या सोचती हो? आप, या इट इज सेड दैट ओनली जस्ट अ पॉजिटिव थॉट इन मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। तो क्या क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट इज योर क्वेश्चन ऑल अबाउट? सो व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट इट? Actually, this is not my question. He sent in a group this thought ओ ये about स्नेहा रेखा का है, राइट? नहीं, ये आपका रिप्लाई है ना, विपिन, विपिन का है ये ये रिप्लाई। एक्चुअली ये रिप्लाई मेरा है सर। इसके हाँ तो ये क्वेश्चन इस, जो है हाँ हाँ, तो मैं इसका पूछ ही रहा हूँ कि जब आपने ये फॉर्म किया तो आपके माइंड में क्या था, क्या था वो? आप इसके बारे में मतलब आपकी थिंकिंग क्या है इस मतलब इस थॉट के बारे में, ये क्या ये सही है या थिंकिंग मत यूज उसके करो बाद आप, फिर मैंने बिना, अगर आप हिंदी में भी बोलते हो तो उसको थिंकिंग के जगह पे क्या रखोगे हिंदी का वर्ड? आप इस बारे में क्या सोचते हो, वही होगा ना आपकी जी आप क्या हिंदी में सोचे बोलो इसके मेरे को, हाँ, आप क्या सोचते हो? राइट, सो आइडियली इट शुड बी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सेम व्हाट, वही क्वेश्चन को फिर मैंने नेक्स्ट में यूज किया मतलब चेंज करके। हाँ डू यू ठीक है, एग्री विद। अच्छा अच्छा, ठीक है, देन फाइन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और व्हाट आर योर थॉट्स? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, नहीं तो हो क्या सकता है, व्हाट आर, फिर देखो वही हो गया, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट भी हो सकता है। राइट, नेक्स्ट, it is said that only just a positive thought in the morning can change our whole day। इसमें क्या गलत है? फर्स्ट तो होल का स्पेलिंग गलत है। अच्छा, होल का स्पेलिंग गलत है, और फुल स्टॉप लगना चाहिए, वो एक हो गया। ये हाँ इट इज सेड नहीं है। it
इज सेड दैट, ठीक है, इट इज सेड दैट के बाद में लगा सकते हैं इट इज सेड दैट, ओ कैपिटल नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस के बिगनिंग का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है, और या तो फिर आई अगर आ जाए प्रोनाउन तभी कैपिटल, बीच में कैपिटल नहीं लगाना है, तो ओ कैपिटल नहीं होना चाहिए। इट इज सेड दैट ओनली जस्ट अ पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे, होल डे, फुल स्टॉप। मुझको लगता है ये ओनली और जस्ट almost same है. It is said that just a positive thought, only a positive thought, only a positive thought would have been better. Only and just के almost एक ही अर्थ आते हैं ना, तो unnecessary repetition है. It is said that only a positive thought in the morning can change your whole day, right? ये सही सेंटेंस होगा. नेक्स्ट और क्या था? थैंक्स फॉर शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी, ये आपका सेंटेंस है. फुल स्टॉप लगा है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लगता है आपको कुछ इम्प्रूव करना है. सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है इसमें? शेयर वर्ब है. तो सब्जेक्ट मिस है ना इसमें. थैंक्स तो क्या होना चाहिए था? थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी. थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ मी. पर ये हम लोग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डे टू डे में, तो वो सही रहेगा. थैंक्स फॉर, हाँ वैसा ही, हाँ, बट रिटर्न जैसे इंग्लिश में, नॉर्मली ऑफिस हाँ में जैसे कुछ हाँ वैसा हाँ, बात. थैंक्स फॉर शेयरिंग योर experience, thanks for sharing your experience with me. Okay. Yes, thanks for sharing your experience with, but ये complete sentence नहीं, but ये सही रहता था. Not thanks for, so sharing your experience, thanks for sharing your experience with me. Okay, I prefer to make it I thank you for, I thank you for sharing your experience with me. would have, ये होना चाहिए complete sentence. मेरा थोड़ा टाइपिंग का एरर है, पता नहीं मेरा माइंड क्यों उल्टा सीधा कर रहा है आज. नहीं, टाइपिंग में हो रहा है मेरे से, ये थोड़े दिन से मैंने देखा है. ठीक है, ये होगा कंप्लीट सेंटेंस. आई थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ मी, और आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, व्हाटएवर. रिटन इंग्लिश में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. ये हो गया एग्जाम्पल फ्रैगमेंट सेंटेंस का. क्यों? इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. हाँ, थैंक्स हो गया वर्ब, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. ओके, बट ये हो गया स्पोकन इंग्लिश फ्रैगमेंट सेंटेंस. बट रिटन इंग्लिश में क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए. आई थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. ठीक है, we are trying to learn grammar, we are not trying to learn how to improve our spoken English, क्योंकि अपना मेन गोल क्या है? IELTS है. और मैं आपको बताया कि बहुत लोगों को बेसिक ग्रामर का प्रॉब्लम है, तभी मैंने ये स्पेशल कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया. आपका कोर गोल तो IELTS ही है ना? गोल तो सर इम्प्रूवमेंट ही है खाली अभी. अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. यस दे आर, कहाँ हो गया? ओके सर, ओके सर, चलेगा. ट्राई टू यूज पंक्चुएशन आल्सो.
ओके, ये भी फ्रैगमेंट सेंटेंस हुआ, कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ. इट इज जस्ट अ यू शुड ट्राई टू यूज. मेरा खुद का भी बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये फ्रैगमेंट सेंटेंस हुआ. स्पोकन इंग्लिश में होता है. आई रेकमेंड होना चाहिए. आई रेकमेंड और इंसिस्ट पे लगा सकते हैं. ठीक है, आई रेकमेंड यू टू यूज पंक्चुएशंस आल्सो. ये कंप्लीट सेंटेंस होगा. ठीक है, मेरे खुद के सेंटेंस की एग्जांपल दे रहा हूं मैं. ये भी फ्रैगमेंट सेंटेंस हुआ. ट्राई टू यूज और यू शुड ट्राई टू यूज पंक्चुएशंस आल्सो. आई रेकमेंड यू टू यूज पंक्चुएशंस आल्सो. जी. राइट. तो हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? हम लोग सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट. सो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये हो जाता है फ्रैगमेंट सेंटेंस. राइट. सो रिटन इंग्लिश में राइट. ठीक नहीं लगता, ये इनफॉर्मल इंग्लिश हो जाती है. तो इस बंदे ने क्या लिखा था यहाँ पे? आर दे स्टूडेंट्स. क्या गलत है इसमें? इसमें क्वेश्चन हाँ, मार्क उसमें बाद लगा में. दिया ना, क्वेश्चन मार्क मिस हुआ था. सॉरी. यहाँ पे क्या गलत हुआ? यस दे यस आर. के बाद कोमा. वेरी गुड. यस दे आर शॉर्ट आंसर होगा. ये कल हमने सीखा था ना. तो यस दे आर. टी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा. यस दे आर फुल स्टॉप. ग्रेट. और क्या हुआ? है ना, फुल सेंटेंस बचा, बता रही है. तो इसमें भी वही गलती हुआ. क्या हुआ? कॉमा आना चाहिए. कोमा. यस दे आर स्टूडेंट्स. फुल स्टॉप भी मिस हुआ. राइट. ये सब जी क्यों सर. बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू चैट ट्राई टू बिल्कुल. यूज ऑल दीज थिंग्स. यस. इट इज श्योर. माई प्लेजर. इसमें क्या आना चाहिए था? कहाँ पे हम लोग? यस आई एग्री विद दिस थॉट. इट इज माई प्लेजर में भी कुछ गलत है. क्या गलत है? या तो एस जो है एपोस्ट्रोफी करके आना चाहिए था, या फिर इज आना चाहिए था. इट इज माय. इट इज. वेरी गुड. दिस इज माय फर्स्ट प्लेजर नहीं होना चाहिए. फर्स्ट में तो एक अपॉस्ट्रोफी लगना चाहिए. ओके, इट इज बनाने के लिए. और दूसरा लास्ट में फुल स्टॉप. बट रिटन इंग्लिश में हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस. सो Can we use this is my pleasure instead of दिस इज माई my प्लेजर कह pleasure. सकते हैं. नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, बट आपने भी क्या बोला? प्लेजर बोला. प्लेजर नहीं Pleasure. बोलना है उसको, प्लेजर बोलना है. Pleasure. प्लेजर. Pleasure. राइट. सो इट इज Okay. माई प्लेजर. ये पंजाबी एमटीआई है. Okay. प्लेजर अपने में ए ज्यादा होता है ना अपनी भाषा में. Mm-hmm. ए ज्यादा है. ए का Pleasure. यूज बहुत होता है पंजाबी. तो उसको क्या है, उसका इन्फ्लुएंस इंग्लिश में आया था. एग. आप लोग एग बोलते हो. बहुत ही, मतलब आप बोलते हो नहीं पता नहीं, बहुत लोग एग बोलते हैं. Egg. हाँ, Egg. वो छोटा होना चाहिए. एक 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 एग नहीं, Egg. एक. एनीवेज, सो इट इज माय प्लेजर और इट्स माय प्लेजर. अपॉस्ट्रोफी मिस हुआ था उसमें. ओके, और क्या है? ये हम लोग हर रोज नहीं करेंगे, मैं इनिशियली कर रहा हूँ मैं. Okay. इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग ग्रामर एंड ऑल, आप लोग थोड़े लोग ही, आप तो अकेले ही हो तो ना, आई कैन गिव मोर क्वालिटी टाइम टू यू, मोर डिटेल्ड. कहाँ पे हम लोग? ये हो गया ना, ये भी हो गया. टुडेज वी लर्नड अबाउट हाउ टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस. तो उसमें क्या हुआ? Today's के बाद एक कोमा डालना चाहिए था. We learned. ये भी सेंटेंस देख लो. कीप पोस्टिंग as many sentences as possible. इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या होना चाहिए? You is understood in this basically. Okay, but complete sentence क्या होना चाहिए?
कंप्लीट होना चाहिए. You should keep on posting as many sentences as No, no, possible. you keep posting. ना you keep चलेगा. Should जरूरत नहीं है. You keep posting. मैं बोल रहा हूँ कि आप पोस्ट करते रहो. जी. You keep posting as many as sentences possible. तो you miss है इसमें. You is understood. ये spoken English में और written English में नहीं होता. Okay, so we should avoid. अपने emails में भी we should avoid. Today's we learn. इसमें क्या होना चाहिए? Today's के बाद एक कॉमा डालना चाहिए. ठीक से सोचो. सेंटेंस सही है? Today's. लास्ट में तो फुल स्टॉप लगना चाहिए. वो एक हो गया. दूसरा टुडेज नहीं होना चाहिए. टुडे होना चाहिए. Today. आज हमने टुडेज के बाद में नाउन लगना चाहिए. यस्टरडेज क्लास, टुडेज क्लास. ठीक है. वो पॉजिटिव नाउन होता है. मैं सिखाऊंगा बाद में जैसे जैसे स्लाइड में आएगा. पर ये क्या हुआ यहाँ पे? टुडे कॉमा वी लर्नड अबाउट हाउ टू मेक शॉर्ट्स. About to नहीं आएगा. About to निकलेगा. To निकलेगा इसमें. तो यहाँ पे दो रिपीटेशन हो गया. जैसे ओनली जस्ट में पहले में आया था, यहाँ पे भी दो दो हो रहा है. या तो फिर अबाउट यूज करो या तो फिर हाउ टू यूज करो. ठीक है. तो टुडे वी लर्न हाउ टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस. सही रहता. अगर इसको निकाल दें हम लोग तो टुडे वी लर्न हाउ टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस और शॉर्ट टू मेक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. या तो फिर और एक तरीके से कर सकते हैं. टुडे वी लर्न about to make we learn about we learn about to make short answer questions. सर ये इसमें about आएगा. To तो नहीं लगा सकते. We learned about short answer questions. या अगर make रखते हैं तो to लगाना पड़ेगा. ठीक है. थर्ड फॉर्म भी अच्छा. आपने अच्छा एग्जांपल दे दिया. टुडे के बाद में कॉमा आएगा. मेरे को भी फ्लुएंट नहीं लग रहा है. फर्स्ट सेंटेंस ही सही रहेगा बेसिकली. सर एक्चुअली about to एक फ्रेज भी है ना सर. about to come, about to go. मतलब नेक्स्ट होने वाला. नेक्स्ट एक्शन अबाउट टू मेक. सो we learned about short answer. Yeah, we learned about short answer questions. we learnt how to make वो आ गया ना. पहला हो गया वो. Today we learned how to make. That is the exact one. ये 100% करेक्ट है. मैं बस बता रहा हूँ. अगर से you know दूसरे वे में भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं. Today we learned about to make शॉर्ट सेंटर क्वेश्चन. फर्स्ट ही सही है वैसे. मैं बता रहा हूँ. सेकंड भी ठीक थोड़ा ठीक है. ओके. लास्ट वाला भी टुडे वी लर्नड अबाउट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. किसके बारे में सीखा हमने शॉर्ट आंसर के बारे में सीखा. तो ये तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं. ये रिकमेंडेड नहीं है. ओके. दिस इज नॉट रिकमेंडेड बट चलेगा. पर जो पहले लिखा हुआ ओरिजिनल वो तो गलत है एकदम. राइट. आई थिंक कहाँ पे हम लोग. ये भी हो गया. Today's class was fantabulous, but I was unable to. अच्छा. तो इसमें क्या हुआ? Today's के बाद कॉमन नहीं ठीक रहेगा. बताया अभी तो बताया ना मैंने. टुडेज के बाद में नाउन लगना चाहिए. पहले सेंटेंस में क्या था? नाउन नहीं लगा है ना. टुडे के बाद में क्या वी आ रहा है. वी नाउन नहीं होता है ना. क्या क्लास? आज का क्लास. सो टुडेज क्लास का मतलब क्या है? आज का क्लास. अर्थ उसका वो आता है टुडेज क्लास. तो टुडेज वी नहीं होता ना. मतलब नहीं आता. टुडेज मूवी, टुडेज क्लास, टुडेज वेदर, टुडेज डे, टुडेज फूड, टुडेज डिनर. तो टुडेज के बाद में नाउन लगना चाहिए. Right. Yeah, so today's class
was fantabulous but I was unable to rejoin. क्या हो गया इसमें, क्या गलती हो गई? लास्ट तो फुल स्टॉप लगना इसमें चाहिए, राइट? हाँ फैंटाब्लस के बाद एक कोमा डलना चाहिए। जहाँ तक मेरे को लगता है, और रीजॉइन, रीजॉइन के बीच में स्पेस लगाया आपने, हाइफन आएगा या, सो रीजॉइन इज हाइफन। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। दो वर्ड्स मिलके जब एक वर्ड का उच्चारण होता है। और एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे हो गया रीचेक। ब्रदर, हाँ हाँ रीचेक, ब्रदर इन लॉ लगा लो ना, बेस्ट एग्जांपल है ब्रदर, और यहाँ मदर इन लॉ रख लो, ठीक है, आपके लिए सिस्टर इन लॉ कर देता हूँ। सिस्टर इन लॉ, ये क्या है, तीन वर्ड्स है, बट तीन वर्ड्स को जब ये सब एक्चुअली जुड़ के एक वर्ड बन रहा है, सिस्टर इन लॉ मतलब एक जी एक के बारे में, तब होता क्या जी है, इन सच केसेस यू शुड यूज हाइफन, ठीक है? तो रीजॉइन भले ही दो वर्ड है, इन दो को एक बन रहा है, तो क्या आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए, राइट? तो वो एक एरर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, टुडेज क्लास वाज फैंटाबुलस। फैंटाबुलस कोई वर्ड होता है क्या? जी वर्ड है, मेरे को तो नहीं पता। शायद यूएसए में यूज होता है। देख लेते हैं एक बार फटाफट। इंग्लिश में लाखों वर्ड्स है मेरे पास, ठीक है, वो एक लग रहा है मेरे को, फैंटाबुलस वर्ड, ओके, बट उससे पहले कॉमा लगाना चाहिए। So today's class was fantabulous, but I was unable to reach. Oh, excellent, wonderful, fabulous, fantabulous भी होता है, ओके, राइट। मैंने आपसे एक नया वर्ड सीख लिया। ये इंडियन आइडल में नहीं, ये डांस बेबी डांस कुछ आता है ना उसमें, गीता माँ, उसका सुना है मैंने वोकैबुलरी फैंटाबुलस। मैंने को लगा कि ये कुछ बना दिया गया है, बट यस देयर इज अ अच्छा वर्ड। हाँ वो बनाती रहती बैठ के कुछ भी। मेरे को वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फैंटाबुलस कभी सुना नहीं, एक्चुअली कोई फैंटाबुलस। यूएसए का बंदा था उसके मुंह से मैंने सुना एक दो बार, फिर मैंने भी इस तरह देख लिया था गूगल में, गुड गुड, तो ऐसे ही मेरे को सीखा जाता लगा। है, तो लैंग्वेज सुन के सीखी जाती है, ऑब्जर्व करके सीखी जाती है। वेरी गुड, किसी ने यूज करा, आपने भी यूज करा, वेरी गुड। तो मैंने चलो, दो तीन वर्ड उनसे सीखे थे। एक क्या था, जब शाम को उनका कुछ भी वर्क कंप्लीट हो जाता था तो वो ये बोलते थे लेट्स कॉल इट डे। करेक्ट लेट्स करेक्ट, कॉल इट डे, ये लेट्स एक कॉल इट उनका पक्का ही था। हाँ और कुछ भी अच्छा कुछ हम बोलते थे, जैसे वेरी गुड। कुछ उन्होंने बोला रिकमेंड करना भी आइसक्रीम के लिए बोलो, तो हमने जैसे कुछ भी एक रिकमेंड कर दी भी ये वाला मंगाओ, तो उन्होंने बोलना होता था इट साउंड्स गुड। तो वेरी कुछ ऐसा दो चार चीज मैंने वो वहां से वेरी गुड, सीखा। वेरी ऐसे ही सीखा हमने भी, पंजाबी ऐसे ही सीखा है ना, जब हम लोग अपने मदर टंग भी हमने ऐसे ही सीखी है, जो हमारे जी माता पिता बोलते थे वही हमने बस रिकॉर्ड कर लिया और उसको यूज करना शुरू किया। इंग्लिश भी वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम स्पेशली विद पीपल हु स्पीक करेक्ट इंग्लिश, वो बहुत जरूरी है। ओके, सो ये हो गया करेक्शन इस सेंटेंस का। एनीथिंग एल्स? यही हो गया ना, बस यही था आई थिंक। ओके सर ओके सर। राइट राइट। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, तो काफ़ी सारे हुए इसमें, वेरी गुड। चलो उसको मिनिमाइज करें, लेट्स गो विद द थर्ड चैप्टर। मेरा लैपटॉप बहुत लैग कर रहा है। Okay, so we're gonna learn today. We'll start with using simple present tenses. शुरू हो रहा है almost. How to use simple present. So content बहुत सारे हैं. Let's not waste our time reading the content. Contents. Okay. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? She He walked. walked, तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ मेरे को, क्या लगता है आपको? वह चलती है। वह कहें, वो चलती है या वह चलती है? हाँ, चलती है, वेरी गुड। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई वॉक,
और we walk. First person मतलब I, singular I, plural we. Second person मतलब you, plural भी होता है you, singular भी होता है you. जी एक को भी बोल सकते हैं you, दो को भी you बोल सकते हैं. बट जब हम लोग दो बोलते हैं तो you usually use you both. you both. क्लैरिटी के लिए you both बोलते हैं. अगर दो से ज्यादा हो गया तो you all walk with me. So both and all can be avoided in spoken English because it is understood जब हम लोग बोल रहे हैं. Okay. जी Yes. So you both भी लगता है, you all भी लगता है. Sometimes it is understood in the conversation. Third person के साथ क्या होगा? Third person is he, she, it. it name. तो क्या होगा उसके साथ? ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में. ये बताया कि नहीं बताया मैंने कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस लगता है, बताया था ना मैंने हाँ जी बताया. फर्स्ट क्लास में. वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो जी रहा है. देखो, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर्स हैं पूरे. सो इसके साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन भी आया तो एस लगेगा. प्लूरल आएगा तो नहीं लगेगा एस. ये याद रखना है. नाउन को अगर प्लूरल लगाते हैं तो नाउन को अगर एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है. वर्ब को अगर एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है. उल्टा है केस, ये याद रख लेना. वर्ब के साथ अगर हमने एस लगाया तो वो सिंगुलर बन गया, एस फॉर सिंगुलर. बट नाउन के साथ अगर प्लूरल लगाया, ये तो हमको स्कूल में भी सिखाया गया था, नाउन के साथ ही अगर एस लगता है तो प्लूरल बनता है, पर वर्ब के साथ नहीं बनता है. उल्टा है, ये याद रखना हमेशा कि उल्टा है. इट इज ऑपोजिट. ओके, नाउ आई ईट लंच एवरी आफ्टरनून. तो इसका मतलब क्या हुआ? हर दिन, मैं हर आफ्टरनून. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जितने भी हफ्ते आते हैं एक महीने में, एक साल में, हमेशा. राइट? एवरी आफ्टरनून. Max drives to work every day. Okay, we get up every morning. Oh, sorry, every weekend. Sorry. Next is Kyle, and Kyle calls Mimi every weekend. मतलब Saturday, Sunday. मतलब हर weekend, Saturday, Sunday. Excuse me. So when do we use simple present? We use simple present for habitual actions. तो उसमें क्या हाईलाइट किया हुआ गया है? I eat, Max drives, we get up, Kyle calls. और कब कब करते हैं वो वेरी करे, भले एवरी हो सकता है यार, एवरी वीकेंड हो सकता है. ओके, राइट? तो इसका समझ में आ गया ना कि व्हेन वी से सच थिंग्स, इट इज बेसिकली अ हैबिट और इट इज समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आई गो टू वर्क एवरी डे, पार्ट ऑफ आवर लाइफ. दोनों. अच्छा, क्या लगना चाहिए इसमें? वॉच, वी वॉच. वी वॉच. वॉच बोलो, वॉच मत बोलो, वॉच. नेक्स्ट. He watch, bats. वॉच. Watch. क्या ना, वॉच Yes. हाँ. Yes. Watch. सो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? He watch. नहीं, वॉचेस बोलना है. क्या बोलना है? वॉचेस. रिपीट करो मेरे साथ. He watches. वेरी गुड. वॉचेस. प्रोनाउंसिएशन रूल आता है, मैं बता दूंगा आपको बाद में. सो वो क्या होगा? ही वॉचेस. ही वॉच क्यों नहीं होगा यहाँ पे? Third person, sir. Singular. वेरी गुड, आपको रूल याद है. वेरी गुड. नेक्स्ट. We eat lunch at. ईट लंच एट. आपने किसी को सुन के कुछ वर्ड सीखे ना, जैसे फंटाबुलस हो गया, लेट्स कॉल इट फॉर द डे हो गया, जी. ये सब सीखा है जी. ना. जी. आप मेरे साथ क्या जी. सीखोगे? जब मैं बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझको कॉपी करो आप. ठीक है? जी बिल्कुल. ध्यान दो, ग्रामर के पे भी ध्यान दो, और and try to see how I am pronouncing each and every word, and you try to copy also. Okay? Right. Okay. So we eat lunch at 12. Right. Now here what it should be?
Jara takes Jara takes 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 a walk in the morning. My friend, rides yeah, my rides friend rides her horse every day. ये सब habits हो गए. Okay. they Now, always drink tea with now we are going to learn frequency of words. ये मेरा इसको नीचे लगा देता हूँ. So we're going to learn now frequency adverbs. Adverbs क्या होते हैं? Adverbs are the word which add more detail. ठीक है, लिख लो. Adverb क्या होते हैं? Adverbs are the words which add more detail. It gives extra information. ठीक है, लिख लो. याद नहीं रहता है, समझना. लिख रहा हूँ लिख Adverb क्या होता है? It gives extra information or it add more details. And it add more details to an action or to an adjective, to a verb or an adjective or an adverb. बस ये याद रखना कि it adds more detail. तो यहाँ पे adverb क्या हुआ इस sentence में? They always drink tea with lunch. तो इसमें adverb क्या हुआ? Always हुआ. क्या कौन सा ऐसा word जो extra information add कर रहा है? सर always ही कर Always कर रहा है, right? This is the word which is added. It's adding extra information to drink. Action क्या है? Drink है. drink This is the action. कब कब drink करते हैं? It is adding extra information. always Okay. Yes. Now, always का मतलब क्या होगा? हर रोज 100%. बहुत ही अच्छा स्लाइड है ये. इसको कॉपी कर लो अगर आप चाहिए तो आपको. Usually मतलब मेरी usually eats lunch at school. मतलब कभी कभी छूट जाता है, महीने में एक बार या कभी कभी. ये पक्का नहीं है कि छूटेगा उसका. बिना उसके नॉलेज के कभी कभी छूट जाता है, कभी तो भी एक बार, राइट? फ्रीक्वेंसी 99% तक है, 90 to 99%. ऑफ्टन, अमेरिकन्स इसको ऑफ्टन बोलते हैं. ब्रिट यूके इंग्लिश में ऑफन है. ठीक है, हम लोग यूके फॉलो करते हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स रूल्ड अस. इंडियंस फॉलो you know British. So often, but yes, often is also pronounced. So Canada में और यहाँ पे जाओगे तो कनाडा का थोड़ा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है ना, नेबरिंग कंट्रीज है वो. ओके, सो often मतलब क्या? और कम हो गया, 75%. मतलब मिस होते रहता है, ज्यादातर मिस होता है. समटाइम्स कभी कभी 25 to 70%. Tia sometimes eats lunch at school. seldom अगेन यूएस में बहुत यूज हुआ करते हैं. ब्रिटिश लोग यूज नहीं करते, उन लोग खाली रेयरली यूज करते हैं. हम लोग खाली रेयरली यूज करते हैं, राइट? सो अमेरिका में सेल्डम भी बहुत बहुत यूज होता है. सो टिया seldom eats lunch at school और टिया rarely washes her car. दोनों भी सेम है ऑलमोस्ट. देखो 10% दिख रहा है ना, दोनों में 10% है. So both are almost same. थोड़ा slight difference आता है. Okay, so all these are called frequency adverbs. They are adding extra information in terms of frequency. कब कब होता है वो action, right? So there are different types of adverbs. हम लोग इसमें frequency adverbs सीख रहे हैं. So Mary always eats her lunch. Mary usually eats lunch at school. Josh often eats hamburgers. Tia sometimes eats lunch at school. Tia seldom eats lunch at school. Eva rarely washes her car. Clear? कुछ पूछना है इसमें? Clear है ना? नोट कर लिया ना आपने इसको? कर लिया. Very good. Okay. Never भी है, which is 0. ये तो पता है. People say Jaya never ever goes to school.
ओके, नेवर एवर वेंट टू, वेंट आना चाहिए, गोज नहीं होता, नेवर एक ही वर्ड होगा। जे, सॉरी, जे नेवर गोज टू स्कूल, कभी नहीं जाता है, 0%। Okay. Okay, इसको ऊपर कर लो। So all these are called frequency adverbs. Okay, अभी क्या आएगा इसमें? This is the frequency. ठीक है, we are doing an activity now, Okay. we are practicing now. This is the frequency, which means Sunday भी, Monday भी, Saturday भी, पूरे दिन। Always, always. Always, very good. So it will be always. Very good. Next, एक ही बार हफ्ते में। Rarely. Seldom या rarely दोनों चलेगा। Right. Next, हफ्ते में बस एक ही बार छूटता है। Usually. Usually, very good. 2 बार छूटता है। Often. Often या sometimes दोनों भी चलेगा, दोनों भी सेम है almost, often या sometimes दोनों भी चलेगा। Right? Are we clear now to use the Well, frequency clear, sir. adverbs? Yes? Clear. Yes, sir. Very good. Next topic is other frequency expressions, और क्या क्या हो सकते हैं? She goes to the library once a week. So वहाँ पे frequency adverb में क्या हुआ? We were using only one word as an adverb. यहाँ पे क्या हो रहा है? It is a phrase. इसको बोलते हैं adverb, adverbial phrase. So once a week is becoming a phrase. ठीक है? We can also use like she rarely goes to library. ऐसा हाँ भी? हाँ, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, मतलब this is the other way of expressing the same. Okay. ऐसा एक लैंग्वेज है जिसको ना, जिसको हम काफी तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने प्रीपोजिशन में एग्जांपल दिया, ठीक है, ऊपर का क्या है, कितने सारे वर्ड्स है ऊपर, ऑन भी है, ओवर भी है, अबव भी है ना? तो इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक ही चीज को कई प्रकार से बोला जा सकता है, और थोड़ा बिल्कुल। मीनिंग कभी कभी डिफर हो जाता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, 2 तरीके से बोला जाता है, रेयरली भी बोल सकते हैं, वंस अ वीक भी बोल सकते हैं। दैट्स व्हाट इट मींस, राइट? So she Right. goes to the library once a week, twice a week, Was 5 okay. times a week. वीक की जगह हम लोग मंथ भी लगा सकते हैं, डे भी लगा सकते हैं। वंस इन द मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ट्वाइस इन द मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, राइट? सो अ वीक ये सब चेंज हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, या डे हो सकता है, वंस इन द मॉर्निंग हो सकता है, मंथ्स एट द नाइट हो सकता है, व्हाटएवर। So basically it's a phrase which we can use. I go to school 5 times a week. I go to movies twice a month. I go to the beach once a year, or twice a year, 3 times a year, whatever. So how many times? जब जब कोई क्वेश्चन पूछे तो हम लोग इस तरह से आंसर दे सकते हैं। How many times do you go to school? I go to school 5 times a week. How many times do you how many times in a week do you go to school? तो आंसर क्या होगा? I go to school 5 times a week. Right. Clear? You want to make notes? A day भी आएगा, a Yes, week sir. भी आएगा, a month भी आएगा, a year भी आएगा. How many times? Right? या तो फिर Right, sir. yeah, in the morning, once in the morning, twice in the morning भी आता. I feed my dog every morning. I ride my horse every week. I wash my car every year. So every is singular, hence उसके साथ में weeks नहीं लगाना है, week ही आएगा। ठीक है, ये रूल याद रहेगा ना? Wrong usage क्या है? Every months, every years, every weeks, every days नहीं, every is always singular, तो उसके बाद में every week ही आएगा। Okay. How often do you drink coffee? Short answer, every morning. मतलब spoken English, every morning. Written English में every morning नहीं. I drink coffee every morning. So, right.
क्या आएगा यहाँ पे? ड्रिंक कॉफी, कुछ भी डाल दो सर, ऑलवेज कर दे तो। So you always drink coffee? Yes, I always drink coffee. Very good. Next. ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है? ये दोनों बात कर रही हैं. इसका हुआ Mia May doesn't drink coffee. I know she dash drinks coffee. तो क्या आएगा? She never, Never. Doesn't मतलब 0%, no? तो क्या आना चाहिए? I know she never drinks coffee. ये कॉन्वर्सेशन हो गया. वेरी गुड. सो ये बोल रही है, क्या बोल रही है? डज डॉक्टर अबूद टेक अ वॉक एवरी डे? नो, ही वॉक्स 5 or 6 days a week. ये बोल रहा है. ये कॉन्वर्सेशन हुआ. तो what should be the one here? 5 or 6 times a week. So usually. Often या sometimes. क्योंकि यूजुअली में परसेंटेज खाली एक होना चाहिए. अगर एक मिस होता, 6 times a week होता तो यूजुअली. 5 भी आया तो ऑफ्टन. याद है ना आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट? हाँ मैंने नोट किया. सो ऑफ्टन आएगा क्योंकि 5 बार आ रहा है, 5 या 6. जी. खाली 6 बार होता तो यूजुअली. Right. Okay, so now we'll discuss using frequency adverbs with be. be forms मतलब is. इससे पहले हम लोग क्या किया हमने? Is. We use frequency with action verbs. Now we are trying to learn frequency verbs with adverbs with be. Is, are, am, whatever. Jeff is always dirty. So what is the frequency adverb here? Always. Always. What is dirty? गंदा होना. मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये? क्या ये नाउन है? क्या ये वर्ब है? क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये एडवर्ब है? क्या है ये? ऑब्जेक्टिव. यस, एडजेक्टिव है. डिस्क्राइब कर रहा है जेफ कैसा है. हाउ इज जेफ? जेफ इज डर्टी. द वर्ड्स which answer how are adjectives, right? Dirty. Very good. Let's move. The subject. तो frequency adverb कहाँ लगना चाहिए? be के बाद लगना चाहिए. Okay, usually, often, sometimes. ये लिख लो, बहुत important है ये. So we always use frequency adverbs after be form. पहले नहीं आएगा. Jeff never is dirty नहीं बोलना है. समझ में आता है, मतलब हो गया वो बटलर इंग्लिश हो गया या चलेगा स्पोकन इंग्लिश में समझ में आ जाएगा हम लोग ऐसे बोलोगे तो. बट एक्चुअली ग्रामेटिकली रॉन्ग है वो. ठीक है? Jeff always is dirty wrong. Jeff is always dirty. Right? Right. Okay. Sergio always rides a bike. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, frequency adverb action verb के पहले आया. Usually rides a bike, often rides a bike, sometimes rides a bike, seldom rides a bike, rarely rides a bike. तो क्या होगा ये, उसमें रूल क्या है? फ्रीक्वेंसी सिंपल एडवर्ब, प्रेजेंट में. हाँ, सब्जेक्ट के बाद में अगर एक्शन वर्ब लगता है तो पहले आएगा. बी फॉर्म लगता है तो बाद में आएगा. ठीक. बी फॉर्म वर्ब हुआ ना सब्जेक्ट के बाद में तो बाद में आया. पर इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, एक्शन वर्ब ही आ गया सीधा, तो उससे पहले आएगा. तो कभी भी याद रखो एक्शन वर्ब के पहले ही लगता है. पहला वाला भी स्लाइड दिखा दूं मैं आपको. पहला वाला स्लाइड में भी देखो आप. ओके, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है बट फाइन, नो प्रॉब्लम. ये याद रख लो कि एक्शन वर्ब अगर होगा तो उसके पहले लगेगा. नेवर राइट्स. Adverb is adding more information to the verb. कब कब नहीं चलाएगा. Never writes. Okay.
Now let's put into practice. कहाँ लगेगा usually? he is usually tired. Very good. देखो आपकी निकल रही थी. He usually is tired. नहीं, वो नहीं होगा. Right? That will be wrong. He is usually tired. ठीक है. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या हुआ, जो आप अभी तक यूज करते आ रहे हो और जो गलत सुनते आ रहे हो, ये सही नहीं, ये बांध के चलो आपके माइंड में कि हम लोग जो सुन रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जिन लोगों को सुनते हैं हम इर्द गिर्द, ये गारंटी नहीं है कि वो लोग सही बोल रहे हैं. ठीक है. बिल्कुल इंडिया में मैक्सिमम इंडिया में लोग मैनेजेबल इंग्लिश यूज करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल एट एट हायर लेवल आल्सो. ठीक है. ये जो चेयरमैन डायरेक्टर वीपी भी होते हैं ना, वो लोग भी मैनेजेबल इंग्लिश बात करते हैं. ठीक है. तो तेरे एक संभावना है, ये बहुत ही बड़ी संभावना है कि जो आपके सामने बोल रहा है उसकी ग्रामर गलत हो. ठीक है. तो आपको ये अपने आप पे ये रखना है, ये कंपैरिजन रखना है. हाँ हाँ, मुझको पता है ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, क्योंकि मैंने ये ग्रामर सीखा है. राइट. और अपने मन में बोलना, हाँ अगर मैं होता तो ऐसे बोलता. ऐसे भी हम लोग सीख सकते हैं. ठीक है. तो ये मेरा प्रोफेशन है, तो यही होता है. मैं जब कभी कुछ पढ़ता हूँ या कभी किसी को सुनता हूँ, तो मेरा माइंड मेरे को बोलते रहता है, हाँ ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंगली ग्रामर ये सही नहीं. राइट. तो ही यूजुअली इज टायर्ड, रॉन्ग. ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, ही इज यूजुअली टायर्ड. इसमें क्या होगा, Jeff is never sad. Jeff is never sad. Never sad. Never sad. Very good. Next. Lucy often reads at the library. At the library. At, yes. Lucy often reads at the library. Very good. Library. Next. It rarely rain in the desert. It rarely rains in the Rains desert. Very good. All right. We'll stop here. 1 hour हो गया. ये लड़की है नहीं. So spelling and punctuations not that important, but yes, we'll continue this. तो मेरे को बताओ, shall we have Saturday Sunday session or take a break? मैं तो recommend करता हूँ. मेरे को लोगे तो आपको ही मुनाफा है, क्योंकि मैं I will end this classes on July 12th. Okay. July 15th, sorry. July 15th को, June 15th को हमने शुरू करा ना. जी जी. So July 15th I'll end it. So to have the maximum benefit out of it, it's better that Saturday Sunday also we have session. Okay, no problem. बोलते हो, हाँ, I'm just being very honest to you. आपको नहीं लेना है तो no problem, I can also take rest. But continuity होती अच्छा है always, right? So anything you want to tell Vipin so far? No, how your experience has been and how things are going on? Do you see it's going on or it's improving? Yes, I'm improving actually. Now I'm comfortable to some writing mail and a little bit speak and grammar also. So it's good for me actually. For my thinking, it's very good for me. Lovely. So we have just started with basics now. Yeah. More after we cross 5th chapter, 6th chapter, then we'll have more to learn. So these are the basics, fundamentals, which were very important to form sentences and all. Right, then we'll move on. Okay, so carry on, associating with others to speak in English. I recommend start at home also. Strongly. Yes, I'm trying, lot of sir. I'm beneficial. trying. मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम टेलिंग यू, व्हेन मेरी बेटी अभी 8th क्लास में और मेरा बेटा अभी 6th क्लास में जाएगा, एंड आई लॉस्ट माय वाइफ लास्ट ईयर May 19th I lost, and then I lost touch with my kids also, क्योंकि they are no more with me.
मैं बोल ये रहा हूँ इसलिए कि मेरे में ज़्यादा टेंशन नहीं है उनके बारे में एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे मुझे पता था, मैं ऑलरेडी ट्रेनर था बाई देन, मुझे पता था कि अगर मैं घर में इंग्लिश का माहौल अगर कंटिन्यू करूं तो वो लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, तो बाय द टाइम दे कुड गो टू केजी नर्सरी किंडरगार्टन स्कूल, दे कुड स्पीक इंग्लिश, दे कुड अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैंने उनसे ना तो हिंदी में बात की ना तो तेलुगु में बात की, जो मेरी मातृभाषा है, मदर टंग है। जी बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, बाय द टाइम दे वर इन फर्स्ट एंड सेकंड दे कुड स्पीक, बट पॉइंट ये था कि मैं अकेला कोशिश कर रहा था इंग्लिश में बात करने की, राइट? सर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या मेटरनल अंकल यस आंट और मेरी वाइफ, वो हमेशा तेलुगु में लगे रहते थे, राइट? ओके अगर ये पूरा इंग्लिश होता तो आज वो मतलब अभी भी ठीक है वो लोग, पर और बढ़िया होते। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में भी आ गया। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की इंग्लिश सबकॉन्शियस हो जाए तो घर में वो माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। sir actually you're right but I'm trying just but how can we judge speaking it's when I speak हम्म। it should You it don't can be I mistake. yes, I you don't worry about whether there are mistakes or not. You don't worry about it. What is important is that let the language become subconscious. Even if there are mistakes, no problem. No one has learned to speak any language correctly in the first attempt. Yes or no? आपके खुद के Yes बच्चों sir. को ले लो, जब उन्होंने पंजाबी बोलना शुरू किया होगा, जब वो 1 साल के थे या जो भी थे, तो Right sir. उन्होंने गलत से ही शुरू करा ना। बिल्कुल चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो, थोड़ा टूटा फूटा से शुरू करा ना। तो बस हाँ वही जी ध्यान बिल्कुल रखो, आप सब लोग एक 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 टीम बन गए हो आप लोग, और टूटा फूटा से शुरू होगा जो भी होगा, right? So right you sir. don't focus on Right whether you're going to speak correct or not. You only focus on, are we making it a habit, right? Then you're anyways right sir. learning tips from me, right? You're learning grammar from me, right? The same grammar you can teach them, because what you say, that becomes 70%. What you hear, that becomes 20%. पहला क्लास याद है ना? Right sir. Right. So whatever you are learning here, if you're trying to tell to your wife and to your kids in the Yes, sir. process of speaking English, you are also improving, they are also improving. और ये भी है कि आपके बच्चे कौन से क्लास में है अभी? सर मेरी बेटी 3rd क्लास में, बेटा भी 1.5 ईयर का ही स्कूल में। ठीक है, तो बेटी का अगर स्कूल अच्छा है, कोई अच्छे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल या बड़े स्कूल में डाला है अगर आपने, बड़े स्कूल में सर। तो वो ऑलरेडी अच्छी इंग्लिश सुन रही है, वो भी आपको करेक्ट कर सकती है। और ये ओपन रखो अपने बच्चे के साथ, देख बेटा, जो आप अपने स्कूल में सुनते हो, जैसे टीचर बोलती है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी और उसको ये भी बोलो, अभी हर बार जब आप करेक्ट करोगी तो आपको एक टॉफी मिलेगा, राइट राइट? सो मेक इट, डोंट मेक इट अ स्ट्रिक्ट रूल, मेक इट अ वेरी फनी रूल, मेक इट अ वेरी फनी। एंड मैं पता नहीं आप कैसे 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 प्रकार के फादर हो, फ्रेंडली हो या स्ट्रिक्ट हो, मुझको नहीं पता, बट जितना फ्लेक्सिबल, जितना फ्रेंडली रहोगे उतना अच्छा रिलेशन रहेगा और अच्छा अच्छा लर्निंग हो सकता है, बस वही कहूंगा मैं। बिल्कुल So yeah, the point here is try to be into the English environment, try to create that English environment. Just listening to these sessions are not going to be helpful to you. I'm telling you very openly. In the first class only I told you, right? राइट And yes, keep the group active. Try to, as and when you get time, do that. ठीक है? यस Chalo, यस that's it for the day, right? Okay, Bipan. So you have a nice day. Have fun. सब बाय। Bye bye.